Good morning to friends. Today I will take this new chapter. This is Introduction to Stress and Strain. So, because I have taken this chapter, because I am just getting the request from the different sections and from the different students that as I am just teaching the design, so they said that this is a very important topic and we have some difficult concept to understand. So please start this one. So this is my new lecture. This is Introduction to Stress and Strain. So this stress और strain क्या है? इसका मैं अपने से पूरा कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से आपको कंसेप्ट दूं इसका, so that you will not forget and you must know, क्योंकि this is very important topic in the strength of material, in applied mechanics, and moreover you can say in the design also. So on your request I have taken this you can say chapter. So this is very important one and you try to understand that what is Introduction to Stress and Strain. This is my lecture number 1. So stress क्या है? What is stress? Stress क्या है? First we will write down the definition and then I will explain it. So stress है, it is the measure of internal resistance. It is the measure of internal resistance against the external load applied on the body or material. ठीक है, on the body, right? So this is the first part. Second part of the definition is stress is internal force or internal resistance per unit area. हम इसको इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं. एंड द थर्ड वन इज इट्स यूनिट्स आर पास्कल, राइट? That is Newton per meter square, but mostly we just take the area and mm square. So you can say this is 10 raised to 6 Newton per mm square. This is equal to the megapascal. So this is this here, right? So this is the definition. Just first try to understand the definition. What is the definition? It is the measure of the internal resistance against the external load applied on the body, right? ये क्या है? जब हम किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल लोड लगाते हैं, what happens? Try to understand it. Like you can say this is a body and you apply the external load on the body. When you apply the external load on the body, there is the deformation in the body, right? Or you can say there is a deformation in the material of the body. So, when there is the deformation in the material of the body, in all dimensions, you can say, in shape, size, and in all dimensions, that depends upon the application of the load. That depends upon the application of the load, that what type of the load you are applying there. So you can say, when there is a deformation in the body, what happens? In the body, or you can say that in the material of the body that consists of the number of particles which are connected to each other by some bond, right? And these particles will resist the deformation. These particles will resist the deformation.
So the internal force or the internal resistance applied by these particles against the tendency of the external load to deform, that internal resistance is called the internal force. You understand this point? कि ये internal force कैसे create होती है? How the internal force is created? Suppose if the body is like this and you don't apply any force on the body, right? So then there is no deformation. So then there is no deformation there. So when there is no deformation, there is no internal resistance set up in the material in the body, material of the body, right? So in this case, जी आपने जो याद रखना है, जो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है कि when we apply external load, जब हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई करेंगे किसी भी बॉडी के ऊपर, whether it is rigid, brittle, ductile, whatever it is, when we apply the external load there, what happens? There is always the deformation in all the dimensions, you can say, right? Deformation is there, and when there is a deformation, the material, or you can say the particles, the atoms which are in the body, they will try to resist the deformation, or you can say they will try to resist the tendency of the external load to deform the body. That tendency of the external load, that tendency of not external load, that tendency of the particle to resist the deformation of the body, during that period, what happens? There is the internal force will set up there, right? So how the internal force set up, this I told you, ये कैसे होता है, अब इसको हम इसका कंसेप्ट जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे. First I will take this example. Suppose this is your example. This is a bar. I have taken the bar here, right? So this is the bar, and this is the tensile load P here, and this is the tensile load P here, right? So this load is passing, this force is passing through the CG, you can say CG of the bar, right? So this is the action force we have applied on the bar. There is the action force on the bar here. So try to understand. The bar, this is in the equilibrium. You can say that this force is also P and this force is also P, or you can say sigma Fx is equal to 0 in this case, right? Sigma Fx, this is equal to 0. Now what happens when you apply external load, as you have applied that external load here? So I will just assume that there are 2 points. One point I will assume here A, and one point I will assume here as B. Point means particle. I have taken 2 particles just to make you understand. To make you understand, I have just assumed. This is my assumption, right? Practically it is not there, but this is my assumption. I have taken 2 particles here. So I will say that when the body is in the rest, you have not applied any force there, external force you have not applied here. These 2 particles, they are connected by some bond here. There is some bond in the material, right? So these are connected by some bond. So when you apply the force, what happens? This particle A, that will move to A dash, and this particle B is moved to B dash toward this side, right? ये आपका इस साइड पे मूव करेगा और ये आपका इस साइड के ऊपर मूव करेगा, क्योंकि ये क्या है, जो आपकी बार है, दिस इज गोइंग टू इलांगेट, ये इलांगेट हो रही है बिकॉज यू हैव अप्लाइड द टेंसाइल फोर्स हियर. तो टेंसाइल फोर्स के केस में क्या होता है, इलांगेशन होगी बार की. तो जो पार्टिकल आपका जहां पे होगा ए के ऊपर, ये ए डैश में चला जाएगा, और जो आपका पार्टिकल बी के ऊपर होगा ये आपका बी डैश में चला जाएगा, राइट? सो व्हाट हैपेंस, दिस पार्टिकल ए डैश, जो जहां पे गया आपका ये पार्टिकल इधर से इधर, सो दिस पार्टिकल इज हैविंग द टेंडेंसी, द इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी क्रिएटेड इन दिस पार्टिकल. तो ये क्या करेगा, ये जो इसकी जो पोजीशन डिफॉर्म हुई है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर जाने के लिए ये एक इंटरनल फोर्स जो है इसमें क्रिएट होगी, और जो इंटरनल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किस साइड के ऊपर होगी, दिस साइड के ऊपर होगी, बिकॉज द particle will go to its original position, right? So you can say that the internal force will be set up in the particle or created in the particle. That force is set up itself
You are not giving any force to this particle. This is the internal resistance of the particle. That force will set up, which will try to move the particle to its original position. Same is the case with this particle. Here, the internal force or the internal resistance will be set up, and that will try to move this particle B dash to its original position. So that internal resistance which is set up in the particle, this is you can say this is called the internal force is being set up there. ठीक है, ये आपको पॉइंट समझ आया कि क्या होगा कि ये जब ये पार्टिकल्स, जब कोई बॉडी डिफॉर्म होती है तो उसमें जो उसके डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, डिफॉर्म होंगे। ठीक है, तो जो डिफॉर्मेशन जो उनकी डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स की होगी, वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने के लिए क्या करेंगे, वो एक फोर्स उसमें सेटअप होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस वो सेटअप करेंगे, सो दैट दे विल गो टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। एज आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ यू कैन से सम इलास्टिक मटेरियल्स, राइट, और यू कैन से टेक द एग्जांपल ऑफ द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के केस में क्या होता है, व्हाट इज इन द केस ऑफ स्प्रिंग, क्या होगा कि जब हम स्प्रिंग को डिफॉर्म करेंगे, एक्सटर्नल लोड लगाते हैं, डिफॉर्म करते हैं स्प्रिंग को, स्प्रिंग क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगी उसमें, और जब लेकिन उसका जो स्प्रिंग फोर्स जो होगी, जो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस सेटअप होगा, वो क्या करेगा, वो उसके काइल्स को दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ले जाने के लिए वो स्प्रिंग फोर्स उसमें सेटअप होगी। वो जो फोर्स होगी उसको हम कहते हैं स्प्रिंग फोर्स इन केस ऑफ स्प्रिंग। सो यू कैन से इन दिस केस आल्सो दैट these two particles will behave like a spring, so they will also come to its original position, and the force which is set up in that force is having the tendency to resist the deformation which is due to the external load, right? So this is called you can say this is called that, or you can say that the internal forces will set up here. But ये body जो है, this material is made up of a different infinite number of the tiny particles, right? तो जब ये डिफॉर्म होगा तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स डिफॉर्म होंगे, राइट? सो यू कैन से अगर मैं इसको प्लेन के ऊपर कट कर रहा हूं, सपोज दिस इज योर प्लेन, आई विल कट द बॉडी हियर, तो क्या करता हूं मैं, इसका लेफ्ट पोर्शन ड्रा कर लेता हूं, दिस इज योर लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट साइड, दिस इज योर लेफ्ट साइड, और लेफ्ट पोर्शन में इसका ड्रा करता हूं, ये आपकी फोर्स P है, तो दिस इज ऑलरेडी इन द इक्विलिब्रियम, ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है, राइट, सिग्मा Fx इक्वल टू 0, जो फोर्स P इधर है तो ये फोर्स P इधर। अब मैंने इसको क्या किया, इसको आई हैव कट द बार, सपोज इस प्लेन के ऊपर मैंने बार को, या इस सेक्शन के ऊपर मैंने बार को कट कर लिया। अब दिस फोर्स, जहां ये फोर्स तो आपकी P है, अब देखिए दिस इज मेड ऑफ द नंबर ऑफ यू कैन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स। तो ये क्या करेंगे, ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल फोर्स सेटअप करेंगे, और जो इंटरनल फोर्स जो सेटअप होगी उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, उसकी डायरेक्शन होगी इस तरीके से, उसकी ये डायरेक्शन टाइप। अब देखिए ये बार आपका इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब है ये समेशन ऑफ all the forces are the summation of the internal forces which are there, इसका समेशन किसके बराबर होना चाहिए, सो दैट द बार दैट इज इन द इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये पोर्शन भी तो इक्विलिब्रियम में होगा, तो समेशन जो इसका होगा इंटरनल फोर्स का, जो समेशन ऑफ द इंटरनल फोर्स जो जहां पे क्रिएट होगी, दिस इज इक्वल टू P, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जहां पे ये फोर्स क्रिएट होती है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें क्रिएट होगा बाय द डिफरेंट पार्टिकल्स, दैट इज आल्सो इक्वल टू P। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, जो इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें क्रिएट होगा, दिस इज इक्वल टू P। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा इसमें, P। तो स्ट्रेस जो हमारा है, स्ट्रेस क्या है,
सेकेंड पार्ट है डेफिनेशन का, स्ट्रेस इज द इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रेस आपका है इंटरनल फोर्स, मींस इंटरनल फोर्स अगर इसमें P है तो A इज द एरिया है, तो ये आपका स्ट्रेस हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो इसका यूनिट होगा, बिकॉज एरिया वी विल टेक इट। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये आपको समझ आया कि बेसिक क्या था इसका। बेसिक इसमें ये निकल के आता है कि व्हेन यू अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स ऑन समबॉडी, so that external force will deform the body, right? That external force will deform the body depending upon the condition of the load, depending upon the condition of the load. So when there is the deformation in the body, there is always the internal resistance in the body, or you can say that there is always the internal resistance by the particles in the body that will try to resist the deformation of the body which is being done by external load. You understand this point? तो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस जब बॉडी कोई डिफॉर्म होती है तो उसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस उस बॉडी में क्रिएट होगा, और जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या करेगा, जो डिफॉर्मेशन है उसके अगेंस्ट होगा, और जो बॉडी है, जो उसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो भी मटेरियल में पार्टिकल्स हैं, उनको दोबारा ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? सो यू कैन से दैट द इंटरनल फोर्सेस दैट इज बीइंग सेट अप इटसेल्फ देयर। तो इंटरनल फोर्स, वी आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स हियर, वी आर नॉट गिविंग एनी सोर्स to produce the internal force here. Internal forces are being set up itself in the body when the body is going to deform, or you can say when you apply the external force, and when there is a deformation in the body, that the deformation of that body is being registered twice the internal force that is in the opposite direction. You understand this point? This you can say कि किस तरीके से आपकी इंटरनल फोर्सेस क्रिएट होती है। अब मैंने आपको कहा कि जो स्ट्रेस होगी, अब देखिए इस केस में ये आपका यूनिफॉर्म एरिया का बार था, राइट, और जो हमने फोर्स जो अप्लाई किया था, दैट फोर्स इज पासिंग थ्रू द सी, दैट फोर्स इज पासिंग थ्रू द सी। सो देयर इज, यू कैन से देयर इज द कांस्टेंट deformation of the body here, there is a uniform deformation of the body here. So in this case, when there is a uniform deformation of the body, or you can say internal forces are constant, or here you have seen that the internal forces are constant. When the internal forces are constant, then we use this formula P upon A. But this formula is not valid for every case, right? This formula is not valid for every case. क्या होता है कि कुछ केसेस में आपका डिफॉर्मेशंस, कुछ केसेस में इस तरीके से भी डिफॉर्मेशन आपका होता है, राइट। राइट, कुछ केसेस में आपका डिफॉर्मेशन इस तरीके से होता है, पैराबोलिक शेप में भी डिफॉर्मेशन होगा आपका, राइट। सो पैराबोलिक शेप में डिफॉर्मेशन होगा, राइट। तो इस केस में आपने देखा कि डिफॉर्मेशन जो आपका है वो कांस्टेंट नहीं है। इस केस में जो डिफॉर्मेशन होगा आपका, टॉप के ऊपर देख रहे हैं डिफॉर्मेशन आपका मैक्सिमम है, बॉटम के ऊपर भी मैक्सिमम है, और जैसे जैसे ये आपका डिस्टेंस कम होता जाता है, आपका डिफॉर्मेशन कम होता जाता है, और एट द सेंटर पॉइंट योर डिफॉर्मेशन इज जीरो, राइट, योर डिफॉर्मेशन इज जीरो। This I will tell you later on that how this happens when we will go in the equation of the bending stress, then you come to know this thing. But here just to make you understand, I just given the two diagrams कि deformation जो आपकी होगी वो इस तरीके से भी deformation होगी। So here you can say that internal forces which are being set up here, these are not uniform, these are not constant in this case. And in case of the parabolic shape deformation, your internal forces that is also not constant here.
तो ये जो नेट हमें ये जो हमें मिलता है, ये पी क्या है, ये जो इंटरनल फोर्सेस मिलती है, दीज आर द नेट फोर्सेस, दीज आर द नेट इंटरनल फोर्स। जो स्ट्रेस होती है वो हम किसी एक पॉइंट के ऊपर नहीं, क्योंकि हमें इस पॉइंट के ऊपर तो आपकी इंटरनल फोर्स ज्यादा है, इस पॉइंट के ऊपर इंटरनल फोर्स कम है, इसके ऊपर कम है, इस तरीके से कम है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, जो स्ट्रेस हम कैलकुलेट करते हैं वो हम करते हैं पर यूनिट एरिया के हिसाब से। वी यूज टू टेक द एरिया, क्योंकि हमें अगर ऐसा केस है तो हमें पता है कि इस केस में तो सारा जो एरिया है, इस एरिया के बीच में जो आपका क्या है, इंटरनल फोर्सेस कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला लगाएंगे पी अपॉन ए, ठीक है, एरिया इज कांस्टेंट हियर। इसलिए क्योंकि पी आपका जहां पे कांस्टेंट है, राइट, बट हियर आपका पी कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो स्ट्रेस का ओवरऑल जो डेफिनेशन है, ओवरऑल जो उसका फार्मूला ड्राइव होता है वो हम कहते हैं पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस इज द इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट, एंड इट्स यूनिट are the Newton per mm square, Newton per mm square, or you can say the megapascal. Basically its unit is Newton per meter square. ये पास्कल का यूनिट होता है Newton per meter square. I have converted this in the megapascal multiplied by 10⁻⁶ into n divided by m square. So this is the megapascal, right? You understand this? So this is I think clear to you. अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया, you have seen one thing, that your internal resistance or the internal forces are the result of the deformation. यही आपने इस जो जहां तक आपने पढ़ा उसमें आपने क्या सीखा, क्या आपको मालूम हुआ कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो ये किसका रिजल्ट है, दीज आर द रिजल्ट ऑफ द डिफॉर्मेशन। अगर कोई बॉडी उसमें आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, जब बॉडी की कोई डिफॉर्मेशन नहीं होती है, तो मैं आई विल आस्क यू वेदर टेल मी कि क्या उसमें आपकी इंटरनल फोर्सेस सेटअप होंगी, मुझे बताइए इस चीज कि इंटरनल फोर्सेस उसमें सेटअप होंगी जब बॉडी आपकी एज इट इज है, यू आर नॉट अप्लाइड एनी एक्सटर्नल लोड देयर, सो देयर विल बी नो इंटरनल फोर्स देयर, बिकॉज योर इंटरनल फोर्सेस आर द रिजल्ट ऑफ द डिफॉर्मेशन। एंड अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, जो हुक्स लॉ था, ये हम जब हम मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल पढ़ेंगे या स्ट्रेन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें स्ट्रेन का जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे उसमें मैं आपको हुक्स लॉ का बताऊंगा। लेकिन जहां पे जो हुक्स लॉ है वो हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ सेज दैट डिफॉर्मेशन or you can say the internal forces, they are directly proportional to the deformation. Internal forces they are directly proportional to the deformation. क्योंकि ये जो मैंने आपको जहां तक बताया, you come to know this thing कि जो डिफॉर्मेशन है और इंटरनल फोर्सेस है, they are the result of the deformation. अगर आपकी डिफॉर्मेशन होगी तो इंटरनल फोर्सेस सेटअप होंगी, अगर डिफॉर्मेशन नहीं होगी तो इंटरनल फोर्सेस सेटअप नहीं होगी। तो हुक्स ने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या था कि डिफॉर्मेशन आर द इंटरनल फोर्सेस, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो इंटरनल फोर्सेस जो है डिफॉर्मेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए अब जहां पे तो मैंने आपका केस आपको बताया कि इंटरनल फोर्सेस, ये मैंने केस लिया था जब आपका डिफॉर्मेशन आपका कांस्टेंट था, ठीक है। तो जब आपका डिफॉर्मेशन कांस्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, उसने क्या कहा था, internal forces are directly proportional to the deformation. So you can say if your deformation is constant, if your deformation is constant means the deformation one side or the deformation the other end, in both the cases if the deformation is same, if the deformation is constant, then the internal forces which are being set up in that is also constant, right? तो इंटरनल फोर्स जो उसमें सेटअप होंगी वो भी क्या होंगी, उसमें कांस्टेंट होंगी। तो उसके लिए मैं आपको एक लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बाय दिस एग्जांपल। तो इस एग्जांपल से हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, क्या कंसेप्ट है इसमें। देखिए सपोज ये मैं बार ली, मैंने दिस इज योर बार, ठीक है, ये मैंने बताया था, इसको दोबारा आप समझ लीजिए, ये आपका बार, ठीक, यूनिफॉर्म एरिया इस बार,
तो ये बार का एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द बार एंड दिस इज योर CG. I just apply the force P here, external force. I have to write the external action force here, P here, right? So this bar is having the uniform area and I am applying the same force here and the same force here. जितना P मैंने इधर लगाया उतना ही P मैंने इधर लगाया because the bar this is in the equilibrium, right? This is in the equilibrium condition. अब देखिए जब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो मैंने आपको बताया क्या होता है when you apply external force what happens, there is a deformation there. तो कहने का मतलब है जितना डिफॉर्मेशन इसमें होगा, सपोज दिस इज द डिफॉर्मेशन, सो दिस इज द डिफॉर्मेशन, so this is the deformation here, उतना ही डिफॉर्मेशन इसमें होगा, राइट? तो डिफॉर्मेशन क्या है, मैं कहता हूं अगर डिफॉर्मेशन इसका इधर 5 mm है तो इस साइड में भी डिफॉर्मेशन क्या होगा, 5 mm होगा, राइट? और जो इंटरनल फोर्सेज जो इसमें सेटअप होंगी, राइट, जो इंटरनल फोर्सेज इसमें सेटअप होंगी, दिस इज दीज आर द इंटरनल फोर्सेज, these are the internal forces, these are the internal forces. तो ये इंटरनल फोर्सेस अगर आप देखेंगे तो ये इंटरनल फोर्सेस क्या है, इंटरनल फोर्सेस ये आपकी कांस्टेंट होंगी, इंटरनल फोर्सेस आर कांस्टेंट, मींस कब कांस्टेंट होंगी, व्हेन द डिफॉर्मेशन इज कांस्टेंट, ठीक है? तो when the deformation is constant, जब आपकी डिफॉर्मेशन कांस्टेंट होगी तो एक्सटर्नल फोर्स आपने देखा ये भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन यू अप्लाई द टेंसाइल लोड, राइट? देन द इंटरनल फोर्सेस आर डिफरेंट. Internal forces are constant. You can say different means different in nature means constant here. But if I will take one more case here, suppose this is your bar. So this is your bar, right? तो मैं क्या कहता हूं कि इस बार में मैं मूवमेंट अप्लाई करता हूं. दिस आई अप्लाई द मूवमेंट हियर, दिस इज द मूवमेंट आई अप्लाई. तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, जिस तरीके से क्या होगा, दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल आई हैव टेकन कि व्हेन आई विल अप्लाई द मूवमेंट, व्हेन आई विल अप्लाई द मूवमेंट हियर, राइट? तो बार क्या होगा, बार इस तरीके से बेंड होगी. जब बार इस तरीके से बेंड होगी तो इसमें आप देखते हैं कि जे वाला पोर्शन और जे वाला जो पोर्शन है ये क्या होगा, इसमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगी एट द बॉटम एंड एट द टॉप, वहां पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगी. और जो इसकी जो बाकी लेयर्स है जिस तरीके से ये लेयर्स कम होती जाएगी, ये इसकी डिफॉर्मेशन इसकी कम होती जाएगी, राइट? तो इसमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इस केस में होगी. तो हियर यू सी that the nature of the deformation is different. Nature of the deformation is different, and here the nature of the deformation is not constant. So when here the nature of the deformation is not constant, it means that the internal forces which are being set up here, they are not constant, right? So you can say that the internal forces that depends, कि किसके ऊपर डिपेंड करती है, internal forces that depends upon the deformation. तो जैसे जैसे इसकी डिफॉर्मेशन होगी उसके ऊपर इंटरनल, वैसे ही उसकी इंटरनल फोर्सेस होंगी. और जो डिफॉर्मेशन है आपकी, जहां से आपने देखा, जहां पे आपने एक्शन लोड अप्लाई किया, डिफॉर्मेशन इज डिफरेंट. जहां पे आपने मूवमेंट अप्लाई किया, डिफॉर्मेशन इज डिफरेंट. सो यू कैनॉट से दैट द डिफॉर्मेशन इज कांस्टेंट एवरी टाइम. Deformation is constant every time. I have just shown you the diagram also.
in case of this diagram, I have shown you the diagram also. Sometimes the deformations are in the parabolic nature. Sometimes the deformation are in the this type of nature, which I have just given in the diagram. So you can say the deformation is not constant. So it means, but जहां से हमें क्या मिलता है, what we understand, ये deformation constant क्यों नहीं है? क्योंकि जहां पे हमने टेंसाइल लोड अप्लाई किया और जहां पे हमने क्या किया, मूवमेंट, इसके ऊपर मूवमेंट अप्लाई हुआ, तो यू कैन से internal forces are depend upon the deformation, and the deformations are you can say the deformation subject depends upon the load which you apply on the body. डिफॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, लोड के ऊपर डिपेंड करती है जो कि आप किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं. सो इट मीन्स दैट बिफोर गोइंग फॉर द स्ट्रेस, different type of stress, its definitions and how it comes. So before going to that, first of all we must know the different type of the load. What are the different type of the loads which are acting on the materials? So one by one, first of all we will discuss the different type of load, and then we will go to the stress. What type of stresses are there, right? तो ये आपका जो आपका बेसिक था बिफोर गोइंग टू द लोड, ये आपका बेसिक जो था, ये आई थिंक आपको इसका बेसिक समझ आ गया कि इसका बेसिक किस तरीके से था, किस तरीके से आपको किस तरीके से आपने किया. ये अगर आपने इसको ये इस तरीके से आपका जैसे ये सपोज तो यही बार है, मैंने कहा इधर का घूमी, बट ये बार है, ये प्लेन से आपने इसको काटा. सपोज इसको आप काटेंगे तो ये फोर्सेस इस तरफ है, तो ये जो दूसरा साइड होगा इसका आपका, जैसे मैं ये दूसरा साइड इसका ड्रा कर लेता हूं. दिस इज द साइड हियर. तो ये आपका पी फोर्स है, ठीक है ना. तो ये आपकी डिफॉर्मेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी. तो ये आपकी इंटरनल फोर्स इस तरीके से सेट करेंगे. So I think you understand this. Now the next one is I will take the different type of load. Just try to understand. Now, as I told you that the internal forces, they depend on the deformation, and the deformation depends upon the different type of loads. So here we will see what type of the load that is that can be taken that is acting on the material. तो जहां पे हम first of all we will just see the category of the load. This is your load. So this is divided in two categories. The load, this is divided in two categories. That is, one is called force, and the second one is called the moment. अब फोर्स जो आपकी है, ये क्या है आपकी, एक्शियल फोर्स एंड ट्रांसवर्स फोर्स, ठीक है. और एक्शियल फोर्स, this is also divided in two parts. This is also divided in two parts. Axial force, that is tensile force, and the second one is compressive force or load, ठीक है ना, compressive force, right? Now likewise you come here, movement. So movement are the two type, that is bending movement, and the second one is
twisting moment, ठीक है, और टॉर्शनल, ठीक, और टॉर्क. So these are the load. These are the major load what we take here. Load is divided in two parts. That is the force and the moment. And the force that is also divided in two parts. That is the axial force and transverse force. And this axial force, this is also of the two type of nature. This is the tensile force and the compressive force. Likewise, the moment is there are the two types of the movement here. That is the bending movement and the twisting movement, or the torsional movement, or the torque, right? तो जे आपका लोड का आया. अब देखिए इसको वन बाय वन हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि वन बाय वन किस तरीके से है. ये एक्चुअल फोर्स क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल फोर्स, राइट? तो एक्चुअल फोर्स क्या है ये पहले समझने की कोशिश करें. सपोज देयर इज ए बार, लेट अस से देयर इज ए बार and the load P is applied axially. Actually means when the force is passing through along the axis of the material. When the load is passing along the axis of the material, so that force is called the axial force, right? So when क्या होगा? Axial force क्या है? Axial force है कि जब आपका जो लोड होगा, जो फोर्स होगी आपकी एक्सिस ऑफ द मटेरियल होगी, तो उस फोर्स को हम एक्सियल फोर्स कहते हैं, ठीक. तो सबसे पहले देखिए एक आपका सपोज यू हैव टेकन ए बार. अब समटाइम्स क्या होता है उसमें, समटाइम्स सिर्फ लोड अप्लाई होता है, समटाइम्स क्या होता है लोड और मूवमेंट दोनों अप्लाई होते हैं, एंड समटाइम्स उसमें क्या होता है सिर्फ मूवमेंट अप्लाई होता है, राइट? सो दीज आर द थ्री केसेस ऑफ द फोर्स. दीज आर द थ्री केसेस कि इफ यू टेक ए बार, इफ यू टेक ए मटेरियल, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, देयर इज ओनली फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बार, एंड sometimes there is only movement is acting on the bar, and sometimes there is both movement and the force that will act on the bar. So first of all, we will just see the condition where only the force is acting, where only the movement is acting, and where only both the things, that is the movement and the force is acting. This is also very important concept to understand. So before going to this, you can say distribution of the forces and its definition and nature of the things, this are what type of the forces are there. First of all, we will discuss this thing. Suppose if there is a body, there is a bar, so कब उसके ऊपर सिर्फ फोर्स एक्ट करेगी, और कब कह सकते हैं कि आपके उसके ऊपर सिर्फ मूवमेंट एक्ट होगा, और कब उसके ऊपर सिर्फ मूवमेंट और आपका फोर्स दोनों एक्ट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप नोट कर लीजिए, लोड इज डिवाइडेड इनटू पार्ट, फोर्स एंड मूवमेंट, ठीक है. तो फोर्स जब अप्लाई होगी सिंगल, तो उस वक्त क्या कंडीशंस होंगी, जब मूवमेंट होगा तो उस वक्त क्या कंडीशंस होंगी, और जब फोर्स और मूवमेंट दोनों अप्लाई होंगे तो उस वक्त क्या कंडीशंस होंगी, किस केस में ये फोर्स और मूवमेंट दोनों अप्लाई होंगे. तो आप इसको नोट कर लीजिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू रब इट, आई नीड द स्पेस. तो ये इसको हम वन बाय वन जो है बाद में डिस्कस करेंगे. सो लुक हियर, suppose this is your bar, right? This is your bar. ये आपका बार है. So this is the actual force on the bar. This is the actual force on the bar. It is passing through the axis. This actual force is passing through the axis of the bar, and you can say this is the CG, or you can say this is passing through the axis or passing through the CG of the bar. When the case is like this is, you can say case number 1. This is case number 1. When the case is like this, that the force P, or you can say that the axial force, whether it is tensile, whether it is compressive, I have taken here the tensile force. When the tensile force or the axial force is
passing through the CG of the bar or passing through the axis of the bar. So what happened in this case? क्या होगा इस केस में? क्या होगा कि सिर्फ इस केस में जो पहला केस होगा, इस केस में ओनली द फोर्स विल एक्ट, इसमें सिर्फ फोर्स ही आपकी एक्ट करेगी, बिकॉज इसमें मूवमेंट नहीं होगा, बिकॉज ये जो आपकी फोर्स है P that is passing through the CG of this, so there is no movement here, so there is no movement here. तो जो इसका इक्विलिब्रियम ऑफ द बार होगा, ये क्या होगा? सिग्मा fx, दिस इज इक्वल टू 0, राइट? दिस इज सिग्मा fx, दिस इज इक्वल टू 0. सो इन दिस केस यू कैन से जो आपकी डिफॉर्मेशन होगी, इस केस में जो आपकी डिफॉर्मेशन होगी, दैट डिफॉर्मेशन इज ओनली ड्यू टू द एक्सियल फोर्स. यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? Now I will take the case number second. Case number second लेते हैं हम, राइट? केस नंबर सेकंड क्या है? ये आपका बार है, ये आपका बार है, इस इक्वल और अपोजिट फोर्सेस इसमें एक्ट कर रही है. P जहां पे एक्ट करेगा, P जहां पे एक्ट करेगा, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द बार. Right, this is your CG. So here you see, in this case, in this condition, what is there? This is your bar. Here also we are applying the axial force. Here we are applying the axial force. What here you have seen one thing, that this axial force, this is not passing through the CG of the bar. This axial force, this is not passing through the CG of the bar. This is away from the bar. But these forces, P and P, these forces, they are equal. So when these forces are equal, it means their net जो आपका P होगा, क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट है, तो P आपका 0 होगा. फोर्स इस केस में क्या होगा? 0 होगा. बट क्या करेगा? ये एक मूवमेंट क्रिएट करेगा. कौन सा मूवमेंट क्रिएट करेगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका क्रिएट होगा, जस्ट लाइक दिस, क्लॉकवाइज मूवमेंट. तो इस केस में क्या होगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट होगा. तो अगर ऐसी कंडीशन हो, व्हेन द फोर्स इज नॉट पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ द बार और नॉट पासिंग थ्रू द CG ऑफ द बार, in this case what happens? There is, and if the forces are equal and opposite, if the forces are equal and opposite and they are not passing through the CG of the bar, so then in this case the force is 0, but only the movement will act on the bar. You understand this point? Movement कब act करता है? जब कोई भी जब हम किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं और जो फोर्स उसकी होगी, अगर वो फोर्स जो है CG से पास नहीं करती है, तो क्या होता है? वो मूवमेंट क्रिएट करेगी. पर इस केस में क्या था? फोर्स तो CG पास नहीं कर रही है. दिस इज अवे फ्रॉम द CG. इट इज नॉट पासिंग थ्रू द CG. बट these forces are equal and opposite. So net effect of the force जो अपना होगा, फोर्स तो इसमें क्या होगा? इसमें फोर्स 0 फोर्स एक्ट करेगी, कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी. बट दिस फोर्स विल, these forces will create the movement, and जहां पे क्या होगा? सिर्फ मूवमेंट क्रिएट होगा. You understand this point? Now I will take the case second, third, जिसमें आपका मूवमेंट और फोर्स तीनों दोनों हो. वो केस क्या होगा? So case third. अब देखिए केस थर्ड क्या है? ये आपका बार है, दिस इज योर बार, राइट? दिस इज योर C, दिस इज द एक्सिस ऑफ द बार. इस पॉइंट के ऊपर आपकी CG है, इस पॉइंट के ऊपर मैं कहता हूं कि CG. तो एक फोर्स आपकी ये एक्ट कर रही है, एक्चुअल फोर्स, और एक फोर्स इस एंड के ऊपर इस तरीके से एक्ट कर रही है, राइट? सो हियर द फोर्सेस आर नॉट इक्वल एंड दे आर नॉट पासिंग थ्रू द CG. तो क्या होगा? ये फोर्स इस तरीके से मूवमेंट क्रिएट करेगी एंड दिस फोर्स विल क्रिएट द मूवमेंट हियर, राइट?
because it is not passing through the CG. This force will create a movement like this, and this force will create a movement like this. So here in this case, you have seen when the conditions is like this, the forces which are acting on the bar, they are not equal and opposite, and moreover they are not passing through the CG of the bar. So in this case, both movement and the force will act. तो इसमें क्या होगा, both movement and force will act, right? इसमें क्या होगा, फोर्स और मूवमेंट ये दोनों एक्ट करेंगे. तो ये मैंने लोड के अकॉर्डिंग आपको बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ जब लोड होता है, डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर लोड होता है, तो उस वक्त जो है वो किस तरीके से एक्ट होता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट उनकी डिफॉर्मेशन जो है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी. उनकी डिफॉर्मेशन जो होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी. तो ये जो मैंने 3 केस आपको बताया, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मूवमेंट कब क्रिएट होगा. मूवमेंट तब क्रिएट होगा जब कोई एक्शन फोर्स आपकी है दैट इज नॉट पासिंग थ्रू द सीजी, that is not passing through the CG, or you can say that is having the eccentric condition, it's not passing through the CG. That force will create the movement, that force will create the movement. And if the bar is like this, both the forces are equal and opposite, तो at that case क्या होगा, जो फोर्सेज है वो आपकी कैंसिल हो जाएंगी. लेकिन जहां पे अगर ऐसा कोई केस आता है जहां पे सिर्फ मूवमेंट जो है आपका एक्ट करेगा, बट इस केस के ऊपर वेयर द फोर्सेज आर नॉट इक्वल एंड ऑपोजिट, तो जहां पे जो मूवमेंट आपका क्रिएट होगा उस तरीके से होगा. फोर्स भी इसमें इसके ऊपर एक्ट करेगी और मूवमेंट भी इस पर एक्ट करेगा. ठीक है. ये जहां तक आपका हो गया, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. आप फोर्सेस के ऊपर आते हैं, ठीक है ना. फोर्स क्या थी, फोर्स आपकी थी, मैंने अभी जब चार्ट बनाया, दिस इज 2 टाइप्स. ठीक है. फोर्स क्या थी आपकी, 2 टाइप्स, मीन्स एक्शियल फोर्स एंड ट्रांसवर्स फोर्स. पहले हम इसको समझते हैं, एक्शियल फोर्स और ट्रांसवर्स फोर्स क्या होता है. देखिए इसे डायग्राम से समझते हैं. दिस इज योर बार, this is your bar, right? So this is, if the force is like this and passing through the CG, right? So you can say that this is the axial force P, right? This is the axial force P which is passing through the CG. तो जो फोर्स आपकी एक्सिस के ऊपर पास करेगी, कोई भी बार है, कोई मटेरियल है, कोई भी बॉडी है, वेयर यू आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स, एंड इफ दैट फोर्स इज पासिंग थ्रू द सीजी ऑफ द बॉडी, दैट फोर्स इज कॉल्ड द एक्सियल फोर्स. यू अंडरस्टैंड दैट. एक्सियल फोर्स किसको कहते हैं, वो जो फोर्स जो हम अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल लोड जो अप्लाई करेंगे, जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे बॉडी के ऊपर, इफ इट पासिस थ्रू द सीजी ऑफ दैट बॉडी, if it passes through the CG of the material, then you can say that force is called the axial force. You understand this? अब मैंने कहा था ये axial force भी आपकी क्या है, axial force आपकी 2 टाइप्स की है. एक होगा टेंसाइल फोर्स और एक होगी आपकी कंप्रेसिव फोर्स. एक्शियल फोर्स क्या होगी, 2 टाइप्स की होगी, दैट इज टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स. अब पॉइंट यह है कि टेंसाइल फोर्स हम किसके कहते हैं और कंप्रेसिव फोर्स क्या चीज है. देखिए ये आपका बॉडी है, दिस इज योर बॉडी, राइट.
So the force is like this, right? This is your compressive force. It will deform the body. It is passing through the CG. It will deform the body. What its deformation is in compressive nature. इसकी जो डिफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी? कंप्रेसिव नेचर होगा, इसका कंप्रेस करेगी, राइट? इसकी डिफॉर्मेशन होगी. सपोज ये डिफॉर्म इसने किया, दिस इज द डिफॉर्मेशन, दिस इज द डिफॉर्मेशन. सो यू कैन से इफ दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, तो जो डिफॉर्मेशन हो गया आएगा दिस इज बी डैश एंड दिस इज ए डैश. सो हियर यू हैव सीन द डिफॉर्मेशन इज कंप्रेसिव इन नेचर, और यू कैन से इलोंगेशन नहीं होगा इसमें. इसमें क्या होगा? कंप्रेशन होगा, एक्सपेंशन नहीं होगी. क्या होगी? कंप्रेशन होगा. और कंप्रेशन जो पॉइंट ए है ये ए डैश के ऊपर जाएगा, बी बी डैश के ऊपर जाएगा. सो यू कैन से दैट इन केस ऑफ योर कंप्रेसिव फोर्स, व्हेन यू अप्लाई द कंप्रेसिव फोर्स ऑन द बॉडी, देयर इज द डिफॉर्मेशन, बट दैट डिफॉर्मेशन दिस इज इन द कंप्रेसिव इन नेचर, राइट? तो मैंने एक्शियल का तो आपको बताया है. ये आप कह सकते हैं दिस इज द यू कैन से टेंसाइल फोर्स है. ये टेंसाइल फोर्स, ये जो ऊपर मैंने पहले आपको एक्शियल समझाने के लिए डायग्राम लाई थी, तो ये क्या है? टेंसाइल फोर्स है. एंड दिस इज आल्सो पासिंग थ्रू सीजी. और ये जो टेंसाइल फोर्स होगा ये क्या करेगा? ये बॉडी को एक्सपैंड करेगा, राइट? इलोंगेट करेगा. इस केस में क्या होगा? बॉडी आपकी इलोंगेट होगी, एक्सपेंड इस तरीके से, राइट? यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. तो इस केस में आपका क्या होगा? जो इलोंगेशन, एक्सपेंशन, जो डिफॉर्मेशन होगी, ये एक्सपेंशन इन नेचर में होगा. इसका जो नेचर होगा क्या होगा? एक्सपेंशन होगी, एक्सपैंड करेगी. बट इन केस ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स, व्हेन यू अप्लाई द कंप्रेसिव फोर्स हियर, तो आपका जो डिफॉर्मेशन होगी, जो आपकी डिफॉर्मेशन होगी, दैट इज इन कंप्रेसिव इन नेचर. So I think you understand this. So what is axial force? Axial force क्या है? Axial force is that force which is passing through the CG of the material or body, or which is passing through the axis of the body, right? So that force is called the axial force. And the axial force, this is of two types, that is tensile force and the compressive force. So tensile force क्या करते हैं? Tensile force, this will do the deformation, but the deformation that is in the elongation in nature. इसकी जो नेचर होगी, elongation क्या होगी? elongation होगी, expansion होगी, elongation होगा. But in case of the compressive force, the body will deform, but that will deform in compressive nature. No doubt, you can say that इलांगेशन दोनों की बराबर हो सकती है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा, लेकिन साइन जो है वो क्या होगा? दोनों का सेम नहीं होगा, डायरेक्शन दोनों की सेम नहीं होगी. अगर टेंसाइल फोर्स को हम, जो टेंसाइल फोर्स का जो इलांगेशन है, इसको हम पॉजिटिव अनाउंस करते हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो दिस इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन. यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. नाउ यू कम टू दिस ट्रांसवर्स फोर्स. अब ट्रांसवर्स फोर्स क्या है? Transverse force means that force, or you can say that is a radial force that is acting perpendicular on the axis of the bar. That is acting perpendicular on the axis of the beam. Bar नहीं, इसमें भी ये याद रखिए, बार एंड बीम में एक डिफरेंस होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे दिमाग में आया, आई वांट टू शेयर विद यू. बार और बीम में क्या डिफरेंस होगा? जो बार होगी उसमें क्या करते हैं आप? एक्शियल लोड को अप्लाई करते हैं. जो एक्शियल लोड होगा, जो बार में आपका एक्शियल लोड अप्लाई होगा. और जो बीम है, बीम में हमेशा आपका ट्रांसवर्स लोड होगा. एज यू हैव सीन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स, अपने घर में आपने देखा होगा कि ऊपर बीम डाले होते हैं. तो बीम का मतलब क्या है? ये बीम का मतलब ये है कि जब जो ट्रांसवर्स लोड को बियर करेगा, जिस पर ट्रांसवर्स लोड जो है एक्ट करेगा, जिस पर रेडियल लोड एक्ट करेगा और जिसको वो बियर करेगा, वो आप उसको आप कहते हैं बीम. दिस इज द डिफरेंस ऑफ द बीम एंड बार, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो. Sometimes in theory questions in GATE or somewhere else,
they can ask you a very small difference that what is the difference of beam and bar. बीम और बार में क्या डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए. बीम जो है वो आपका क्या करेगा, जो ट्रांसवर्स लोड होगा उसको बियर करेगा, उसको विथस्टैंड करेगा. और यू कैन से बीम के ऊपर जो लोड होगा वो कौन सा लोड होगा, रेडियल लोड होगा, ट्रांसवर्स लोड एक्ट करेगा. अब ट्रांसवर्स लोड क्या है, व्हाट इज द ट्रांसवर्स लोड? यू कैन से ट्रांसवर्स लोड इज द परपेंडिकुलर लोड ऑन द एक्सिस ऑफ द बीम. जो बीम का एक्सिस होगा उसके ऊपर जो लोड आपका, जो फोर्स आपकी परपेंडिकुलरली एक्ट करेगी वो आपका क्या होगा, ट्रांसवर्स लोड होगा. जैसे मैं आपको ये डायग्राम बना के बताता हूं, इसको हम किस तरीके से शो करेंगे. ये आपका बीम है, दिस इज योर बीम, राइट, दिस इज योर बीम एंड दिस लोड इज एक्टिंग ऑन दिस स्टेट W is the load is acting on the beam. तो क्या होगा जब इस पर लोड एक्ट करेगा तो ये जहां पे तो बीम में तो दो रिएक्शन भी होंगे, जिसको RA है, ये रिएक्शन आपका RB है, राइट. ये पॉइंट आपका A और B. तो ये इन केस ऑफ बीम में होगा. तो ये आपको समझ आया पॉइंट. ट्रांसवर्स लोड क्या है, ट्रांसवर्स लोड इज द रेडियल लोड, that load which is perpendicular to the axis of the beam, that is which is perpendicular to the axis of the beam. This is your the axis of the beam and this load is acting perpendicularly to the axis of the beam. So this is your transverse load, right. तो ये आपका क्लियर हो गया. एक्शियल फोर्स किसे कहते हैं, और एक्शियल फोर्स जो दो पार्ट में होगी, टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. एंड नाउ ट्रांसवर्स फोर्स के बारे में भी मैंने आपको बताया कि ट्रांसवर्स फोर्स और ट्रांसवर्स लोड क्या होता है. ट्रांसवर्स फोर्स क्या होती है, ट्रांसवर्स फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी मेंबर के परपेंडिकुलरली एक्ट करती है, जो किसी मेंबर के परपेंडिकुलरली एक्ट करती है. यू कैन से जो मेंबर का जो एक्सिस होगा उसके ऊपर जो परपेंडिकुलरली जो फोर्स एक्ट करेगी उस फोर्स को हम ट्रांसवर्स फोर्स कहते हैं. यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. नाउ वी कम टू द मूवमेंट्स. ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा मूवमेंट के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं कि मूवमेंट्स क्या है, कितने टाइप के मूवमेंट्स होते हैं और उसको हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो वी मस्ट, हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे. अब आ गया ये मूवमेंट. मूवमेंट, दिस इज योर बेंडिंग मूवमेंट एंड दिस इज योर ट्विस्टिंग. बेंडिंग मूवमेंट एंड ट्विस्टिंग और टॉर्शनल मूवमेंट और टॉर्क. अब देखिए मूवमेंट आपके दो टाइप के होते हैं. सबसे पहले तो आई विल एक्सप्लेन यू कि मूवमेंट कैसे क्रिएट होता है. ये मैंने आपको पहले बता दिया. आई हैव टोल्ड यू क्या होता है कि जब फोर्स आपकी जो है एक्ट नहीं करेगी, जब जो भी फोर्स आप अप्लाई करेंगे, एक्चुअल फोर्स जब आप अप्लाई करेंगे एंड दैट फोर्स डजंट पास थ्रू द सीजी, that force doesn't pass through the CG of the body, that force will create the movement. Now the movements are of the two different types, that is the bending movement and twisting movement. And now we will understand this कि किस केस में हमें मूवमेंट मिलेगा कि ये मूवमेंट आपका बेंडिंग है और किस केस में आप जो इस तरीके से डिफाइन करेंगे ये मूवमेंट आपका ट्विस्टिंग है. लुक हियर, तो मैं एक सबसे पहले आई विल जस्ट टेक द एग्जांपल. मैं एक सिलेंड्रिकल बॉडी बनाता हूं.
So let us take the cylindrical body. राइट, हम क्या करते हैं कि cylindrical body लेते हैं. This is a cylindrical body. तो ये cylindrical body में मैं कहता हूं there are the three axes. So there are three axes are there. This is your x-axis. This is your y-axis, and this is your z-axis. So this is the cross section of the body. This is the cross section I have taken. This is the cross section. So this is the cross section. ये आपका cross section हो गया body का. This is the cross section of the body, right? So this is a cylindrical body. You can say cylindrical body. अब देखिए, इसको मैं I will try to explain you, जो इसका कंसेप्ट देने की कोशिश करूंगा. जैसे ये मेरे पास एक पेन है, कंसिडरेट पेन, ठीक. This is your x-axis. This is your x-axis, and here this is your x-axis. I will just twist it like this, right? I will twist it like this. When you can say, when we are applying the force, when we are applying the movement on x-axis, when there is a movement on x-axis, that movement is called the, उस मोमेंट को क्या करेंगे आप? That is called the twisting moment. That is called the twisting moment, or you can say twisting moment is that moment which is perpendicular to the x-axis, right? तो ये जो moment होगा, this is the x-axis, and this moment you have seen, this is perpendicular to the x-axis, that is an x. This is perpendicular to the x-axis. जो moment आपका किसी axis के ऊपर इस तरीके से, ये आपका एक्सिस है, ये मूवमेंट इसके ऊपर इस तरीके से परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के ऊपर इस तरीके से परपेंडिकुलर जो है मूवमेंट लगेगा, उस मूवमेंट को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द ट्विस्टिंग मूवमेंट. ये कौन सा होगा? टॉर्शनल मूवमेंट, और ट्विस्टिंग, टॉर्शनल मूवमेंट और द ट्विस्टिंग मूवमेंट, राइट? जो आपका एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लगेगा. अब देखिए ये आपका जो वाई एक्सिस है, राइट? अगर आपका मूवमेंट जो है इस तरीके से लगता है और ये मूवमेंट आपका इस तरीके से लगता है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है, दीज आर द एक्सिस, सॉरी, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दीज आर द एक्सिस पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन. This axis, x-axis, this is perpendicular to the cross section. जो मूवमेंट आपका उस एक्सिस के ऊपर लगेगा जो आपका परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन है, उस वो आपका जो मूवमेंट होगा, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड द टॉर्शनल मूवमेंट और द ट्विस्टिंग मूवमेंट. और जो मूवमेंट आपका क्रॉस सेक्शन के जो एक्सिस है, पैरेलल एक्सिस है, उसके ऊपर जो मूवमेंट लगेगा वो आपका क्या होगा? बेंडिंग मूवमेंट. So this is the main concept. This is the main differentiation to understand that where you can say that this is the twisting moment, or where you can say this is the bending moment. There is point to understand the moment which is on the x-axis of the cross section, or you can say the moment which is perpendicular to the x-axis of the cross section. That movement is the twisting movement or the torsional movement, and the movement which is on the axis which are parallel to the cross sections, or you can say the movements which are parallel to the cross sections of the axes, y axis and z axis. Whereas y axis and z axis, they are the two axes which are parallel to the cross section. और जब इसके ऊपर जो movement होगा, वो आपका क्या movement होगा? वो आपका movement होगा, कौन सा movement होगा? उस मूवमेंट को आप कहेंगे दैट मूवमेंट इज द बेंडिंग मूवमेंट.
So this is the way how you will differentiate. This is the way how you understand that which is the bending moment and which is the twisting moment. So this is all about your load. Now we will go for the different type of stresses. इसमें लोड के अकॉर्डिंग, बिकॉज इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि मैंने जो आपको लोड का पैरामीटर बना के दिया था, लोड का जो मैंने टेबल बना के दिया था, एंड जो आपका स्ट्रेसेस का जो टेबल होगा, दैट टेबल इज रिलेटेड टू द टेबल ऑफ द लोड. मैं जब स्ट्रेस का जो टेबल आपको बना के दूंगा, देन वी विल कंपेयर, देन वी विल सी दैट हाउ इट इज रिलेटेड टू दिस, राइट. सो नाउ द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस. अब देखो इसमें स्ट्रेस, तो स्ट्रेस जो है, दिस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, दैट इज direct stress and indirect stress, right. तो डायरेक्ट स्ट्रेस किससे मिलता है आपको? फोर्स से. इनडायरेक्ट स्ट्रेस आपको मिलेगा मूवमेंट से, राइट. आप ये होगा आपका एक्शियल स्ट्रेस एंड दिस इज योर शियर स्ट्रेस, राइट. एक्शियल स्ट्रेस, this is also in two parts, that is tensile stress and compressive stress. अब इंटरेक्ट स्ट्रेस में क्या आएगा? मूवमेंट्स आएंगे. तो मूवमेंट के यहाँ पे दो टाइप के होंगे. दिस इज योर बेंडिंग, sorry, bending stress, bending stress, and this is your torsional stress, right. अब देखिए, जो मैंने आपको लोड का बताया था, स्ट्रेस की जगह वहां पे क्या था? लोड था, फोर्स और मूवमेंट, ठीक है. तो जो डायरेक्ट स्ट्रेस हमें मिलेंगी, दिस इज ड्यू टू फोर्स. जो डायरेक्ट स्ट्रेस हम जिसको बोलते हैं, दिस इज ड्यू टू फोर्स, बिकॉज द फोर्स इज एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द मेंबर. सो डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू द फोर्स, एंड दिस stress then it is divided in two parts, that is axial stress and the shear stress. Or an axial stress, that is also divided in two parts, that is the tensile stress and compressive stress. These stresses that you will get due to the force, right. These stresses, axial stress, shear stress, tensile stress and compressive stress, these stresses you will get due to the force when the force is acting on the body. You understand this point? Now you come to this second part of this, that is the bending stress and the torsional stress. These are called the indirect stress. These are called the indirect stress because we are getting this stress due to the movements. We are getting this stress due to the movement. So bending stress and the torsional stress, these are the two parts which we will get due to the movement, and the stresses which produced due to the movements, they are differentiated in two classes. That one class is bending stress and the second class is the torsional stress. I think you understand this thing. So this is the table, this is the chart which I have told you that is related with your load.
तो आप इसमें देखिए कि इसमें लोड जो है आपका क्या लग रहा था, इसमें लोड आपका फोर्स था, तो फोर्स के रिलेटेड जो है ये आपको ये स्ट्रेसेस मिलेंगे। जहां पे एक्शियल लोड था तो आपको एक्शियल स्ट्रेस मिली, और एक्शियल स्ट्रेस जो कि अगर टेंसाइल लोड होगा तो टेंसाइल स्ट्रेस मिलेगी, कंप्रेसिव लोड होगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस मिलेगी। ये जो शियर स्ट्रेस यू गॉट, शियर स्ट्रेस आपको कहां से मिली, व्हेन द ट्रांसवर्स लोड इज एक्टिंग ऑन द बीम। जब ट्रांसवर्स लोड एक्ट हुआ, ये तो एक्शियल लोड से हमें ये सारी चीजें मिली, ये सारी स्ट्रेसेस मिली। व्हेन द ट्रांसवर्स लोड इज एक्टिंग ऑन द बीम, देन यू गेट द शियर स्ट्रेस। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? सो व्हेन यू विल कम टू दिस, मैंने कहा था कि लोड आपका क्या है, लोड के दो पार्ट्स हैं, दिस इज फोर्स एंड द मूवमेंट, और मूवमेंट से आपको बेंडिंग स्ट्रेस मिला और आपको टॉर्शनल स्ट्रेस मिला। यू अंडरस्टैंड दिस? नाउ वन बाय वन हम इसका एक थोड़ा थोड़ा इसका डेफिनेशंस देखेंगे, इसको देखेंगे कि आपका एक्चुअल स्ट्रेस क्या है, शियर स्ट्रेस क्या है, और इनकी जो डेफिनेशंस होगी और जो थोड़ा बहुत इसका कंसेप्ट होगा, इनकी इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, दैट आई विल टेल यू, राइट? सो देखिए, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एक्शियल स्ट्रेस। तो पहले मैं लेता हूं एक्शियल स्ट्रेस, राइट? ये एक्शियल स्ट्रेस, ये एक्शियल स्ट्रेस आपको, जैसे मैंने आपको बताया, एक्शियल स्ट्रेस कैसे प्रोड्यूस होगा, इज ड्यू टू द एक्शियल लोड। जब किसी बॉडी के ऊपर एक्शियल लोड एक्ट करेगा, मींस दिस इज योर बॉडी, दिस इज योर बॉडी, or you can say this is bar and this is the axial load. This is the axial load is acting on the bar, right? तो जब ये axial load इसका एक्ट करेगा, तो उस वक्त जो आपकी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, वो आपकी क्या स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, उस वक्त जो आपकी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी वो आपकी स्ट्रेस होगी एक्शियल स्ट्रेस, राइट? तो इस तरीके से मैं इसको बता सकता हूं किस तरीके से होगी। तो इस तरीके से आपकी एक्शियल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। अब देखिए, मैं एक बॉडी लेता हूं, इसमें एक्शियल स्ट्रेस भी आपको क्या थी, दो टाइप की थी। ये सपोज करो आपका बार है, राइट? और इसमें आपकी ये टेंसाइल फोर्स P मैंने इसको लगाया, दिस इज द टेंसाइल फोर्स, द बार इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड द टेंसाइल फोर्स इज एक्टिंग। सो इन दिस केस में क्या होगा, सपोज दिस इज योर ये आपका प्लेन है, मैं इधर से इसको कट करता हूं, राइट? तो इसको मैंने कट किया जैसे, सो आई विल जस्ट टेक द लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, यू कैन से। तो ये मैंने इसको कट किया, ये मैंने कट कर लिया इसको, दिस इज एक्शन फोर्स P। तो मैंने इसको कट किया यहां से, तो यहां पे क्या होगा, ये इंटरनल फोर्स जहां पे प्रोड्यूस हुई, दिस इज द इंटरनल फोर्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, दिस इज द इंटरनल फोर्स एंड द समेशन ऑफ द इंटरनल फोर्स दिस इज इक्वल टू P, बिकॉज द बार दिस इज इन द इक्विलिब्रियम। तो ये जो P इधर लगा, बार आपका इक्विलिब्रियम में है, तो इंटरनल फोर्स जो आपका P होगा, समेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। तो इस केस में जो आपका एक्शियल स्ट्रेस होगा, जिसे आप टेंशन स्ट्रेस कहते हैं, दिस इज डिनोटेड बाय सिग्मा, दिस इज इक्वल टू P अपॉन A, राइट? सो जहां पे आप देखें वन पॉइंट, ये आपका फेस है, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार एंड यू हैव सीन दैट द इंटरनल फोर्सेस व्हिच आर देयर, दैट इंटरनल फोर्सेस दे आर द परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। सो यू कैन से
the stress which will produce here, that stress, this is called the normal stress also. This is called the normal stress also, and this is uniformly distributed in case of the uniform bar. This is uniformly distributed, or you can say the deformation is uniform. तो टेंसाइल स्ट्रेस आपकी होगी सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए, राइट, दैट यू कैन टेक दिस टेंसाइल स्ट्रेस. तो अगर इसी तरीके से ये आपका कंप्रेसिव लोड इसके ऊपर लगता है, ये था एक्चुअल लोड, तो कंप्रेसिव लोड का भी बना लेते हैं. इसका कंप्रेसिव लोड इस तरीके से लगता है, दिस इज योर बार, राइट. सो दिस इज योर कंप्रेसिव लोड, राइट. तो मैं कट करता हूं बार को जहां से, राइट. तो क्या होगा इसका, this is your compressive stress, right. तो जहां पे जो स्ट्रेस होगी ये कंप्रेसिव होगी. फार्मूला इसका भी होगा सिग्मा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन ए. आप पूछेंगे माइनस क्यों लिया, बिकॉज देयर इज द कंप्रेशन, द नेचर ऑफ द डिफॉर्मेशन इज कंप्रेशन. इफ आई हैव टेकन द पॉजिटिव वैल्यू हियर इन केस ऑफ डिफॉर्मेशन, सो कंप्रेशन क्या होगा इसका, कंप्रेशन के केस में इसका जो साइन होगा दैट विल टेक द अपोजिट साइन, दैट इज द नेगेटिव. दिस इज सिग्मा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन ए. यू कैन से नाउ डोंट देयर मैग्नीट्यूड इज सेम, व्हाट देयर डायरेक्शन कैन बी डिफरेंट एंड देयर डायरेक्शन मे बी डिफरेंट, दैट इज एग्जैक्टली देयर. सो दिस इज योर एक्सियल स्ट्रेस, यू अंडरस्टैंड दिस. तो एक्सियल स्ट्रेस, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस. पहला पॉइंट ये है, एक्सियल स्ट्रेस जो होती है वो क्या होती है, नॉर्मल स्ट्रेस होती है. और एक्सियल स्ट्रेस आपकी दो टाइप की स्ट्रेस होगी, एक होगी आपकी टेंसाइल स्ट्रेस और एक होगी आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस. टेंसाइल स्ट्रेस के केस में क्या होगा, जो डिफॉर्मेशन होगी आपकी वो आपकी होगी इलोंगेशन इन नेचर, और जो कंप्रेसिव स्ट्रेस के केस में जो आपकी इलोंगेट डिफॉर्मेशन होगी दैट इज कंप्रेसिव इन नेचर. द फार्मूला ऑफ बोथ द stresses are same. The formula of both the stresses are same, but only the difference is there that the sign is different. Their magnitude is same, their magnitude may be same, but that their direction is opposite. I think you understand that. This is your axial stress. Now, second one is your shear stress. तो second one क्या था इसमें, axial stress को मैंने कर लिया. अब shear stress जो है, हाउ दिस shear stress, देखिए shear stress, try to understand shear stress ये कैसे प्रोड्यूस होगी. सपोज दिस इज योर बार, दिस इज योर बार, राइट, दिस इज योर बार, and this is your transfer load P. The load is acting like this. ये बार है, इसके ऊपर ये लोड ट्रांसवर्स लोड एक्ट कर रहा है, and this is perpendicular transverse load. So this is the axis. So here you say this load is perpendicular to the axis of the material, axis of the beam. Here I will not say bar, but this is beam you can say, क्योंकि इसमें मैं ट्रांसफर लोड एक्ट करता है, तो जो मैंने अभी आपको डिफरेंस बताया, दिस इज बीम. तो ये ट्रांसफर लोड इसमें एक्ट करेगा. अब देखिए, अगर इसमें ट्रांसफर लोड एक्ट करेगा तो हम जो शियर स्ट्रेस है ये इस तरीके से मिलेगी. क्या करते हैं हम, सपोज दिस इज योर प्लेन, कट द बार, ठीक है ना. जहां से क्या करें, बार को कट कर लें. दिस इज योर बार, ये आपने कट कर लिया. दिस लोड इज पी हियर, राइट. तो ये लोड आपका पी था, राइट. तो आप क्या करेंगे, दिस लोड इज एक्टिंग इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, मींस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बीम, दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट. सो ये जो आपका फेस होगा जहां से आपने कट किया है, तो ये क्या करेगा, इसका जो लोड का डिफॉर्मेशन जो इसका हो रहा था नीचे को, इसको क्या करेगा, ये रेजिस्ट करेगा. तो जहां भी जो इंटरनल फोर्सेस इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर क्या होगा,
इंटरनल फोर्सेस क्रिएट होंगी। तो ये इंटरनल फोर्सेस किस तरीके से क्रिएट होंगी, इसकी क्या डायरेक्शन होगी? ये इंटरनल फोर्सेस आर लाइक दिस। सो ये आपकी इंटरनल फोर्स क्रिएट होंगी। ये जो आपकी इंटरनल फोर्स होंगी, दिस इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। ये आपने देखा कि क्रॉस सेक्शन के क्या है, कि पैरेलल आपके क्रॉस सेक्शन के पैरेलल ये इंटरनल फोर्स क्रिएट होंगी, राइट। तो एक्चुअली इसको हम, तो ये जो पैरेलल जो इसके जो इंटरनल फोर्सेस क्रिएट होंगी, तो उस वक्त कौन सी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी? उस वक्त आपकी शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। तो मैं कह सकता हूं शियर स्ट्रेस नॉट सिग्मा, शियर स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय टाउ, दिस इज इक्वल टू P अपॉन A, राइट। टाउ को हम क्या कहते हैं? दिस इज आल्सो इक्वल टू P अपॉन A। P इज द इंटरनल फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया। बट ये कब, जब ये देखिए इसमें जो इंटरनल फोर्सेस होंगी, दे आर पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, एंड व्हेन द इंटरनल फोर्सेस आर पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, यू कैन से टाउ इज इक्वल टू P अपॉन A। ये उस वक्त जो है शियर स्ट्रेस आपका प्रोड्यूस होगा। अब इसमें एक पॉइंट हो है, ये जो इंटरनल फोर्सेस होंगी, हम तो जहां पे अज्यूम करते हैं कि इंटरनल फोर्सेस मोस्ट केसेस में कि इंटरनल फोर्सेस आपकी कांस्टेंट हैं, बट क्या होता है कि इंटरनल फोर्सेस आपकी कांस्टेंट नहीं होंगी इस केस में। वी जस्ट अज्यूम, वी जस्ट से मोस्टली 90%, 99% वी विल अज्यूम दैट द इंटरनल फोर्सेस आर कांस्टेंट, बट जस्ट you cannot say practically it is not, you can say it is there. So हम इसको किस तरीके से डोनेट करते हैं? टाउ एवरेज लिखते हैं, टाउ एवरेज, दिस इज इक्वल टू P अपॉन A। यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये आपका आ गया शियर स्ट्रेस, राइट। तो शियर स्ट्रेस सबसे पहला पॉइंट यह है कि हाउ यू विल गेट द शियर स्ट्रेस व्हेन द ट्रांसवर्स लोड इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। When the transverse load is acting on the body, means the load which is perpendicular to the axis of the body, load which is perpendicular to the axis of the beam, when the transverse load is acting, that time shear stress will produce, because the internal resistance, if you cut this beam on this plane, if you cut this beam, you will see here that the internal forces, they are in the opposite direction. If the load is acting downward, this is acting upward. To just balance this, to just balance the deformation, right? To just balance the deformation, or you can say to just resist the deformations. These are acting in the opposite direction, right? So these internal forces, here you see that these internal forces, they are parallel to the cross section. They are parallel to the cross section of any beam, body or material. They are parallel to the cross section, and when it is parallel to the cross section, you can say this is tau is equal to P upon, right? Tau is equal to P upon A. So this is tau average. So this you will get. So जहां पे जो आपका फोर्स का था, आपका कौन सा स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस we have discussed, and the two types of axial stresses also we have discussed. That is the tensile stress and the compressive stress, and moreover the shear stress. Now we will take the bending stress. We will just discuss the bending stress. अब देखिए इसको समझिए। अब देखिए बेंडिंग स्ट्रेस कैसा होगा। सी योर बॉल, right? This is your bar. So this is, you can say this is each layer of the bar.
right? So when you apply the movement like this, after the movement, देखिए initially the bar is like this, means when there is we have not applied any movement, the bar is straight like this. So you can say that each layer of the bar is straight. So here I have shown that each layer of the bar, suppose I have just to make you understand, I have taken some layers of the bar. So here you have seen that each layer of the bar, this is also in the original condition, that is also same. So there is no problem here. If I say that this bar is having 100 mm, right? So you see here, initially the beam is like this, right? And suppose say the beam is 100 mm in length. I have taken the beam which is 100 mm in length, and this I have shown the layers in the beam to just explain that how the bending effect will be there. So initially the bar is like this and its length is 100 mm. Now what I will do, I just apply the movements. I will apply the movement here. So when I will apply the movement, this is your figure number second, and this is your figure number first. Just try to understand. There is no need to write it. Just understand the कोशिश करें concept. How beautifully I will try to give you a concept. तो क्या होगा, जब ये मूवमेंट इस तरीके से करेगा तो बार इस तरीके से आपकी क्या करेगी, ये डिफ्लेक्ट करेगी, राइट? तो बार जो है इस तरीके से बार आपकी डिफ्लेक्ट करेगी, राइट? इसकी इस तरीके से इसकी डिफॉर्मेशन होगी। तो इसमें आप देखिए, ये जो आपका जैसे ये डिफॉर्मेशन होगी तो इसमें क्या होगा, इलांगेशन होगी। ये जो जहां से एज पर फिगर यू कैन सी दैट द uppermost position or the topmost position of the bar, ऐसे सपोज ये जो आपका इसका है, इसका लेंथ आपका हो गया आपका 110 mm। ये डिफॉर्म हुई, जो ऊपर वाली इसका लेयर था तो इसका 110 mm इसका क्या हो गया, डिफॉर्मेशन के बाद इसकी लेंथ जो थी एक्सपैंड हो गई एज पर द डिफॉर्मेशन। और ये जो नीचे वाला है
जहां पर भी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगी, लेकिन ये एक्सपेंशन की तरफ होगी और ये डिफॉर्मेशन आपकी कम होगी। तो से मैं कहता हूं कि जे आपका ये था, ये आपका 90 mm। जे जहां से क्या हुआ, इधर से एक्सपैंड हुआ और इधर से एक्सपैंड हुआ, इधर से इसका कंप्रेस हो गया 90 mm। तो जहां देखिए जब जो ईच लेयर है, तो इसी हिसाब से ईच लेयर एज पर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बार, उस हिसाब के डिस्टेंस के साथ ही जो है इसका इलोंगेशन होगा। अगर ये सबसे नीचे वाला जो 90 mm है, जब इसका बेंडिंग हुई इसकी, तो बेंडिंग से जो ऊपर वाला था, मैंने कहा कि से दिस इज 110 mm, इसका एक्सपेंशन हो गया, ये बढ़ गया। तो जो नीचे वाला पोर्शन था इस सेट के, दिस इज 90 mm। जस्ट सी हियर दैट ईच लेयर, सपोज करो ये लेयर जब जहां पे ये लेयर के ऊपर पहुंचा, तो ये आपका 95 mm हो गया। तो जे लेयर के ऊपर दिस वाली लेयर जो है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस कह सकते हैं, दिस इज आपका 100 mm। ये सेम रहा, व्हाट इज द ओरिजिनल कंडीशन ऑफ द बार। जे जो आपका लेयर था, दिस साइड से दिस इज योर 105 mm, एंड ये लास्ट वाला लेयर जो था 110 mm, राइट। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे इसको, देखेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस से जैसे जैसे इसको ऊपर डिस्टेंस जाता गया, राइट, न्यूट्रल एक्सिस से जैसे इसका डिस्टेंस ऊपर गया, तो क्या हो गया, इसका न्यूट्रल एक्सिस से ये एक्सपैंड होता गया, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो था वो क्या होगा, ये कंप्रेस होता गया, राइट। तो इसमें अगर मैं इसका ये आपका था, सपोज ये आपकी थी, इसमें मूवमेंट लगे, ये आपका मूवमेंट है, ये आपका मूवमेंट है, दिस इज द प्लेन, राइट, ये आपका प्लेन है। तो अगर इसको मैं, आपका ये प्लेन जो इस तरीके से है, जो अगर मैं इसके ऊपर इंटरनल फोर्सेस बनाता हूं, राइट, तो आप देखेंगे जो ऊपर वाली लेयर थी, इसका इंटरनल फोर्स इतना है, जो दूसरी थी ये आपकी इंटरनल फोर्स इतनी है, जो तीसरी थी ये आपकी इंटरनल फोर्स इतनी है, राइट। तो जे मैं कह सकता हूं दिस इज जे आपका आ गया न्यूट्रल एक्सिस, राइट। अब इस साइड के ऊपर अगर इधर से आप लेंगे, तो इंटरनल फोर्सेस जो है ये किस साइड के ऊपर आएगी, कंप्रेशन में आएगी, राइट। तो ये आपकी इंटरनल फोर्स आएगी, सपोज जे इतना है, ये आपकी इंटरनल फोर्स इतनी है, और ये आपकी इंटरनल फोर्स इतनी है, राइट। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो ये इस तरीके से थी, ये आपकी लीनियरली जो है, ये आपका लीनियरली ये आपकी इस तरीके से इसकी डिफॉर्मेशन होगी। सो हियर फ्रॉम दिस फिगर यू कैन से द डिफॉर्मेशन इज नॉट इक्वल। So when the deformation is not equal, it means the internal forces which are acting on this is also not equal. But one thing you have seen from here, sir, that as you go on the top side from the neutral axis, that is from the Y, you can say from the Y. Y is the point at the center of the axis, you can say. So जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, right, तो आपका क्या होगा, आपकी फोर्सेज जो है इंक्रीज होती जाएंगी, दैट इज इन द टेंसाइल डायरेक्शन। और जैसे आप इसके नीचे जाते जाएंगे, तो इसकी जो फोर्सेस हैं ये आपकी कैसे होंगी, इंक्रीज होंगी, बट इन द कंप्रेसिव डायरेक्शन, राइट।
तो जो आपकी सिग्मा बी है, जिसको हम बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं, इसका जो फार्मूला है दिस इज एम बाई अपॉन आई. सो व्हाट इज वाई? वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, or you can say that the sigma by this is directly proportional to y. Sigma by b जो है this is directly proportional to y. Means जैसे जैसे y की वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी, राइट, फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपका जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा उसी तरीके से आपका बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ता जाएगा. और जैसे जैसे आपकी y की वैल्यू कम होती जाएगी, बेंडिंग स्ट्रेस आपका कम होगा. एट द सेंटर पॉइंट बेंडिंग स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा? आपका जीरो होगा. यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? सिग्मा बी दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस, दिस इज इक्वल टू एम इंटू बाई अपॉन आई. तो ये जो इक्वेशन बनी थी जिसमें बाई था, ये इक्वेशन बाई किस लिए था? क्योंकि आपने ये देखा एज पर द फिगर जो मैंने जहां पे आपको बताया कि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, सपोज मैंने कहा कि इसकी 100 मीटर लेंथ थी और जब मैंने इसके ऊपर मूवमेंट अप्लाई किए तो क्या होगा? जहां पे जब बेंडिंग मूवमेंट हुआ, जो अपर टॉप मोस्ट था, मैंने कहा कि इसकी लेयर की लेंथ जो है 110 आई. इसी तरीके से जो है, और जो बिलो बॉटम के ऊपर लेयर थी, मैंने कहा उसका जो था वो क्या हुई? डिक्रीज हुई, उसकी लेंथ जो बन गई 90 mm. तो जहां से लेकर जहां तक मैंने ईच लेयर का बताया कि हाउ इट डिफॉर्म्स और हाउ इट इंक्रीजेज इट्स लेंथ फ्रॉम द बॉटम टू राइट. तो जो ऊपर होगा, जो बाई पॉइंट के ऊपर वाला पोर्शन होगा, टॉप होगा, तो जहां पर कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी? जहां ये होगी टेंसाइल, राइट, बेंडिंग स्ट्रेस. और दिस इज कॉल्ड द कंप्रेसिव, राइट. ये टेंसाइल स्ट्रेस होगी, ये आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी. तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, राइट. तो ये था आपका बेंडिंग स्ट्रेस. बेंडिंग स्ट्रेस दिस इज इक्वल टू सिग्मा बी, दिस इज इक्वल टू एम इनटू बाई अपॉन आई. आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम इज द मोमेंट एंड बाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट. सो दिस इज योर बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी. नाउ द लास्ट वन इज योर दिस टॉर्शनल स्ट्रेस. Now the last one is torsional shear stress. Torsional shear stress. तो देखिए टॉर्शनल shear stress कहां से मिलेगी आपको? From the twisting moment. जब हम किसी बॉडी के ऊपर ट्विस्टिंग मूवमेंट लगाएंगे, चाहे टार्क लगेगा किसी बॉडी के ऊपर, टॉर्शन लगेगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट लगेगा, उस वक्त जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी वो आपकी टॉर्शनल शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी. आप देखिए ये टॉर्शनल शियर स्ट्रेस क्या है? मैं एक सिलेंड्रिकल बॉडी लेता हूं,
Right. So this is I have taken. Suppose these are the 2 points. ये आपका cylindrical body था, इसमें मैंने 2 पॉइंट लिए A और A dash. This is the layer. This is the one layer. I have taken one layer, A and A dash. Now you have seen that this cylindrical body, this is fixed at one end. जहां पे क्या है, ये फिक्स है, और दूसरे एंड के ऊपर मैं क्या करता हूं, मैं ट्विस्टिंग मूवमेंट इसके ऊपर लगाता हूं. राइट, ट्विस्टिंग मूवमेंट इसके ऊपर लगाएगा. सो व्हाट हैपेंस, दिस पॉइंट A point that is fixed, because this part is fixed, this side is fixed, तो पॉइंट A तो जहां पे फिक्स रहेगा. और जब मैं जहां पे ट्विस्टिंग मूवमेंट लगाऊंगा तो ये पॉइंट A जो था, ये आपका सपोज इस पॉइंट के ऊपर चला जाएगा A डैश के ऊपर. राइट, तो इस तरीके से ये पॉइंट इसके ऊपर इस तरीके से चला जाएगा A डैश पर. राइट, पॉइंट समझे. तो अगर मैं ये था एंड दिस पॉइंट A डैश, वो A डैश जो इधर मूव करेगा, दिस इज ऑन द सर्कमफ्रेंस, or you can say this point will move parallel to the cross section of the cylindrical body. This point A will move on the parallel to the cross section of the cylindrical body. तो ये जो cylindrical body, this is your cross section, ये आपका suppose cross section है, इसके ऊपर ये point जो है A dash, ये क्या मूव करेगा, ये कैसे मूव करेगा, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन. राइट, तो इसी तरीके से मैं सपोज आपको कहता हूं, ये A इधर से आ गया. अगर मैं जहां पे आपका एक पॉइंट लेता हूं B, तो B कहां पे होगा, राइट, A इधर से आया, B आपका इधर पे आ गया. राइट, ये आपका दिस विल मेक एन एंगल थीटा. सपोज ये आपका एंगल थीटा बनाता है. ठीक है, तो मैं इस तरीके से इसको एक क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं इसका, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट वेल. तो ये आपका क्रॉस सेक्शन मैंने ले लिया सिलेंड्रिकल बॉडी का. तो मैंने ये पॉइंट लिया था A यहां पे, एंड दिस पॉइंट चला गया A डैश यहां पे. राइट, this point is like this. So when I will take this point B here, तो B मैं इधर पे लूंगा, तो अगर A पॉइंट आपका इधर से इधर किया तो B पॉइंट आपका इधर से इधर जाएगा. This is your B dash. Right? If I will say this is your point C, this is your point C, and this will go like this. So here you see one thing, that the point which are moving on this, when you apply the twisting movement of the cylindrical body, and I have taken the points, so these points are moving on the cross section, along the cross section of the body. So it means they are moving along the cross section of the body, or you can say they are parallel to the cross section of the body. Right? तो इसी तरीके से if whole of the distribution, अगर हम सभी इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो सारा जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कि किस तरीके से स्ट्रेसेस का जो इंटरनल स्ट्रेसेस जो प्रोड्यूस होंगी वो किस तरीके से होंगी, ये आपकी इंटरनल स्ट्रेस इस तरीके से प्रोड्यूस होगी. ये सॉरी, दिस विल लाइक दिस विल लाइक दिस. राइट, इसी तरीके से अगर होल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉइंट्स की किस तरीके से होगी, होल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट इस तरीके से ही होगी. फ्रेंड, right? So this is the distribution. Right? This is the distribution. तो इस तरीके से आपका इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा. You understand this point? This is the distribution here.
का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो दिस इज द होल डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो आपका इंटरनल फोर्सेस होंगी इस केस में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगी. अब देखिए इसमें एक पॉइंट आपको लगेगा कि जैसे आपको पता है कि शियर स्ट्रेस आपका जो होता है टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, दिस इज इक्वल टू T into R upon J. Right? This is the equation of the torsional shear stress. So where R is the radius of the cross section. So यहां से आप कह सकते हैं tau proportional to R. जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस होगा that is proportional to R, right? That is proportional to R. तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इसका R का रेडियस बढ़ता जाएगा तो आपका जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा. और जैसे जैसे ये रेडियस कम होता जाएगा टॉर्शनल शियर स्ट्रेस आपका क्या होगा, मिनिमम होगा. एट दिस सेंटर पॉइंट where R is 0, your torsional shear stress is 0, and then again it goes on increasing. If the radius goes on increasing, that your torsional stress will go on increasing. So this is, you can say, when R is maximum, torsional shear stress is maximum, and when R is minimum, your torsional shear stress is minimum, and when R is 0, your this torsional shear stress is 0. So here you can say that in all the cases are the different applications of the load what we have applied on the material or the body. So different application of the load, different type of the internal forces are developed, and these different type of internal forces जो थी, they have produced the different type of stresses. Whether the forces they are parallel to the cross section, whether they are the perpendicular to the cross sections, or whether they are the linear in nature. So this is, you can say, the deformation. You can say that the internal forces depend upon the deformation, or deformation that depends upon the load, and the stresses that depend upon the load also. जो stresses है, which type of load you will apply, which type of the deformation must be there, which type of the internal forces you will get, and what type of the stress you will get there. So this is all about your first lecture of the introduction to stress and strain. So here I have given you complete idea of what is stress and what are different types of the load, what are the different types of the stress. This is in my first lecture, and in my second lecture, which I will take tomorrow morning, that I will give you the different type of the stresses. There are the, you can say, multiple loading cases में stress set आपका स्ट्रेस टेंसर क्या होता है, मल्टीपल लोडिंग जब हो फिर क्या होती है. इसमें एक पॉइंट मैं भूल गया था आपको बताना. इसमें देखिए मैंने आपको एक्सियल स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस के बारे में बताया, लेकिन एक केस ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी स्ट्रेस जो है किसी बार के ऊपर, दिस इज योर बार, राइट, इसको मिटा देंगे. सो वन एक्चुअली आई वांट टू फॉरगेट व्हेन द इंक्लाइंड लोडिंग इज देयर. मैंने आपको एक्सियल लोडिंग के बारे में बताया, दूसरा बताया, लेकिन कभी अगर आपका इंक्लाइंड लोडिंग होगा तो उस वक्त कौन सी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी. देखिए दिस इज योर इंक्लाइंड लोड P, राइट, दिस इज योर इंक्लाइंड लोड P. तो जहां पे दो टाइप की आपको इंटरनल स्ट्रेसेस मिलेंगी, राइट. This is your P cos theta and this is your P sin theta, right? So P cos theta, in this case, this is the axial stress, right? So when the stress is inclined on the body, right? Or you can say that, sorry, not stress, but when the force is inclined on the body, it is not, you can say axial force, or it is not, you can say the transverse force. When the force is like this is your force P. When this force is like this force is
acting on the body at some angle. So you can say suppose it is having an angle theta here. So you have this P cos theta, the force which is horizontal to this. This force is your axial force. So you can say, you can resolve this force P into components. One component P cos theta. This is the axial force, and the P sin theta. This is the vertical force. So this is all about your this first lecture. Tomorrow I will take the second lecture. Thank you very much. And you see this lecture. You just read it and you find the difference. That what do you know about the stresses and strain and how the concept is given to you. And I think it is quite perfectly explained and given to you so that you will not forget this. This is all. Thank you very much.